الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبك محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا، من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على ثمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار. واستبشروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، خصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فستسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن أسقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو ایک واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اسے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ گہرے رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ گہرے رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اور اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی یعنی چھٹکارے کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے
یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ، محدثین کو اس کے بعد روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایتیں معید ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ بھی سنا۔ رمضان کے آنے سے پہلے بالکل شعبان کے آخری دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ تقریر کی کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے اور وہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، اس میں رمضان کی فضیلت، رمضان کا بہت ہی زیادہ برکت والا ہونا، رمضان میں نیکیوں کا بڑھ جانا، بلکہ رمضان میں جو بھی اس کی قیمت ہے، فائدہ ہے، وہ سارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت شیخ نبر اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ محدثین کیا کسی حدیث کو قوی ہونے کے لیے، معتبر ہونے کے لیے راویوں میں جو شرطیں چاہیے، ان میں اس روایت، جو بھی روایت تمہارے سامنے پڑھی گئی، ان کے راویوں میں کچھ کلام کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے معتبر اور بالکل یقینی حدیثوں کا جو درجہ ہے اس حدیث کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ احادیث کے سلسلے میں جس سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، ان میں تو ذرا سی بھی کمزوری برداشت نہیں کی جاتی، لیکن صرف فضائل معلوم کرنا ہو، فضیلتیں کو حاصل کرنا ہو، تو اس سلسلے میں یا اس راستے میں اگر اس قسم کی ضعیف روایتیں بھی اگر آ جائیں تو اس سے فضیلتیں معلوم کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر دوسرا جواب یہ دیا کہ اگرچہ یہ ساری فضیلتیں جو ابھی تمہارے سامنے آ رہی ہے وہ ایک حدیث میں ہے، لیکن ہر دوسری حدیثوں میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ روزہ دار کو افطار کراؤ گے تو یہ ثواب ملے گا، رمضان میں فرض ادا کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، نفل ادا کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ دوسری روایتوں سے کہ جو مضبوط ہے، صحیح ہے، اس سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فضائل میں اگر ذرا سی روایت میں کمزوری ہو تو اس صورت میں اس کا زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ بہرحال حضرت شیخ فرماتے ہیں لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرا اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایتیں معید ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کر کے جو یہ وعظ بیان فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رمضان کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتے تھے،
इस वजह से कि बिल्कुल रमज़ान की तैयारी है, उस वक्त लोगों को अगर फजीलतें बताई जाए तो वो दिमाग में बैठती भी है, समझ में भी आती है और उसके ऊपर अमल करना भी उसको आसान मालूम हो जाता है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले फजीलतें बयान नहीं की, बल्कि 2 दिन बाकी थे और उस वक्त हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अब 1-2 दिन में एक ऐसा महीना आने वाला है जिस महीने की ये फजीलत है, जिस महीने का ये फायदा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम कि शाबान की आखिरी तारीख में खास तौर से इसका वाज फरमाया और लोगों को तंबीह फरमाई ताकि रमजान मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से न गुजर जाए। बुजुर्ग और दोस्तों, आप हज़रात जानते हैं कि बाज़ मरतबा बाज़ औकात ऐसे आते हैं कि वो वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। आप हज़रात के यहाँ क्रिसमस का जो मौका आता है, उस मौके पर आप हज़रात जानते हैं कि तिजारत का बड़ा कीमती वो वक्त होता है। उस वक्त में अगर जरा सी मेहनत कर ली जाए, जरा सी कोशिश कर ली जाए तो साल भर का मुनाफा हासिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी उस वक्त में सुस्ती कर ले तो फिर पूरे साल तक उसको ऐसा मौका नहीं मिलता और अफसोस करता रहना पड़ता है, हज़रात जानते हैं। और इसी वजह से उस क्रिसमस या ऐसे बड़े मौके पर हम खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, आराम छोड़ देते हैं। सब में दर्द हो, थोड़ी सी तकलीफ हो, उस तकलीफ को भी छोड़ छाड़ कर हम तिजारत में लग जाते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरीके से दीन के मामले में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ औकात को बहुत मुतबर्रक बनाए, बाज़ औकात को बहुत ही ज्यादा बरकती बनाए। उसमें जरा सा भी काम कर लो, अल्लाह तबारक व तआला बेड़ा पार कर देते हैं। और दूसरे वक्त में अगर दूसरे वक्तों की तरह अगर इस मुबारक वक्तों को ज़ाय कर दो तो फिर सारी जिंदगी आंसू गिराते रहो, वो फजीलत और वो फायदा हासिल नहीं होता। जब ये बात समझ में आ गई तो यही हाल ये रमजान का है कि रमजान का महीना बहुत ही मुतबर्रक महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत ही बरकती बनाया। मैंने पहले दिन भी बताया था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी रसूल नहीं बनाया गया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को अभी नहीं पहुंचे और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर एहतिकाफ फरमाया करते थे। और ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिकाफ हमारे एहतिकाफों की तरह 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 2 दिन का नहीं हुआ करता था, बल्कि महीनों का होता था। बाज़ मरतबा तक 6-6 महीने तक हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें एहतिकाफ फरमाया करते थे। रिवायतों में देखने से मालूम होता है कि उसमें खुसूसियत के साथ अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी रसूल नहीं बनाए गए, 40 साल भी अभी नहीं हुए, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एहतिकाफ किया करते थे और क्या है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। और उस वक्त भी रमजान का महीना खुसूसियत के साथ उसमें आया करता था। इसी वजह से एक रिवायत से आता है कि जब पहली मरतबा वही नाजिल हुई तो वो रबीउल अव्वल का महीना था या रमजान का महीना था। बाज़ हज़रात का कहना ये है कि वो रमजान के महीना में पहली वही नाजिल हुई। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की बरकत को अच्छी तरीके से जानते थे। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की एक भी सेकंड गफलत में न गुजर जाए। हमारे हज़रत शेख नव्वरल्लाह मरकज़ यहाँ फरमाते हैं कि एक भी सेकंड गफलत से न गुजर जाए। लेकिन हमारी हालत अगर देखते तो एक भी सेकंड नहीं बल्कि कितने ही दिन
सेकंड नहीं कितने ही दिन हमारे गफलत में गुजर जाते हैं। रमजान में गफलत में गुजर जाते हैं। रमजान है, लेकिन रमजान होने के बावजूद दूसरे दिनों में जिस तरीके से हमें नमाज का एहतमाम नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं, तिलावत की पाबंदी नहीं, इसी तरीके से इस महीने में भी ये बात होती है। बहुत ही ज्यादा क्या है, डरने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा अफसोस वाली बात है। बुजुर्ग और दोस्तों, इस वजह से रमजान के महीने की खुसूसियत के साथ कदर करो और उसका हर हर सेकंड और उसका हर हर वक्त अल्लाह की याद में लगे, अल्लाह की इबादत में लगे। एक सेकंड भी गफलत से न गुजर जाए। फिर इस वाज में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम महीने की फजीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ खास तौर से मुतवज्जे फरमाया। सबसे अव्वल के शब कदर के वो हकीकत में बहुत ही अहम रात है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रमजान के पूरे महीने में एक रात है। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ने कुरान पाक में मुस्तकिलन एक सूरत नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र नाजिल फरमाई। और ये रात बहुत ज्यादा कीमती है। जब इस रात का बयान आएगा तो आपको मालूम होगा कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन रहते थे इस दुनिया में, लेकिन उनका ध्यान, उनका ख्याल, उनकी तवज्जो इस दुनिया की तरफ नहीं थी। इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है उस पर उनकी तवज्जो थी, आखिरत की तरफ उनकी तवज्जो थी। आखिरत में क्या मिलेगा, आखिरत में कितना मिलेगा, आखिरत में किस तरह मिलेगा, बस उसी पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की नजर रहती है। यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मरने के बाद हमारा क्या मामला होगा, जन्नत में कैसी जन्नत मिलेगी, जन्नत में कितनी नेमतें होगी, जन्नत में क्या क्या सहूलतें होगी, इन्हीं का उनको फिक्र रहता था और उसी पर वो मुतवज्जे रहते थे। बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने कल भी बताया था कि हमारा तो बिल्कुल सोच सहाबा की सोच से उल्टी हो गई। अभी तो हमारे सोच बहुत अगर कोई सोचता भी है तो यही कि ईद के दिन कैसे कपड़े पहनूंगा, ईद के दिन क्या खाएंगे और ईद के दिन कहाँ तफरी के लिए जाएंगे और किस तरीके से मजा उड़ाएंगे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को फिक्र थी, वो मरने के बाद की फिक्र थी। वो बहुत ज्यादा समझदार थे, इस वजह से कि एक तो थोड़ी देर के लिए सहूलत हो और एक परमानेंट सहूलत हो, दोनों में से किसको इख्तियार करना चाहिए? जाहिर बात है परमानेंट को इख्तियार करना चाहिए। तो कयामत के बाद, मरने के बाद जो नेमतें मिलेगी वो हमेशा हमेशा रहने वाली मिलेगी। और इस वक्त जो भी नेमतें हमें मिल रही है, जो खाना मिल रहा है, जो कपड़ा मिल रहा है, जो मकान मिल रहा है, जो चीजें मिल रही है, वो सब आर्जी है, मौत तक है। और मौत आ गई, वो नेमतें खत्म हो गई। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को फिक्र लगी कि इससे पहले जो उम्मतें गुजरी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से आज तक बहुत सारी उम्मतें गुजरी, इनमें बाद उम्मतों का तो कदो कामत, जिस्मानियत वो भी बहुत ही ऊंचा हुआ करता था। यानी आदमी बड़े लंबे टड़ंगे हुआ करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी रिवायत में आता है कि 60 गज लंबे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी करते हुए अब ये 6 फीट रह गए सब। और न इसी तरीके से दूसरी जो कौमें थी, इन कौमों की दुनिया में रहने की मुद्दत भी बहुत ज्यादा थी। 1000 साल, 1500 साल तक एक आदमी दुनिया में जिंदा रहता था।
किताबों में, तफसीर की किताबों हमने पढ़ा है कि 450 साल की उम्र होने के बाद तो बचपना खत्म होता था। 450 साल बचपना खत्म हुआ। अभी तो हमारा बचपना खत्म हो जाता है 8-9 साल की उम्र में। समझ में आ गया? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को जब ये मालूम हुआ तो ये मैंने अभी आप हज़रात को बताया कि पहले उम्मतें थी, पहले लोग थे, वो जिस्म और जिस्मानियत के एतबार से भी बड़े लंबे चौड़े थे और उम्र के एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ी उम्रें अता फरमाई थी। अभी आप हज़रात ने सुना, लेकिन दिमाग ने कुछ काम नहीं किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ही सुना कि पहली उम्मतें थी, उनकी क्या है मुद्दतें, दुनिया में रहने की मुद्दतें बहुत लंबी लंबी थी। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनकी जिंदगी की मुद्दतें 1000-1500 साल की है तो उन्होंने 1500 साल में कितनी नेकियों का काम किया होगा और 1500 साल में कितनी अल्लाह की रजामंदी के काम किए होंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी के इतने सारे काम किए होंगे तो जन्नत में तो उनके दर्जात बहुत बड़े मिलेंगे। और हमारी तो इतनी जिंदगी है ही नहीं, हमारी जिंदगी तो तकरीबन 100 साल की है। 100 साल की नहीं, हदीस में तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो जिंदगी बताई वो 60 से 70 के दरमियान बताई है। 60 से 70 के दरमियान बताई। अब इस 60 के 70 के दरमियान में भी अगर तुम हिसाब करने जाओ, वैसे तो बहुत हम लोग हिसाब करते हैं, लेकिन ये कभी हमने हिसाब नहीं किया। ये अगर हिसाब करने जाओ तो 15-20 साल इबादत के बंदे हैं, बाकी सारे जा खाते में। 15-20 साल इबादत कर लो, अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता कर देगा। बुजुर्गान दीन ने इसको तफसील के साथ समझाया भी है, इसलिए कि हमारी जिंदगी अगर 60 से 70 के दरमियान है, जैसा कि हदीस पाक में फरमाया, 60 से 70 को जो ज्यादा मिल रहा है, जिनको बहुत सारे 60 से 70 60 से ऊपर होंगे, 60 से 70 वो सब बोनस है, सब बोनस है। और नहीं, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए और इस उम्र को अल्लाह की इबादत में लगानी चाहिए। खैर बहरहाल मैं ये बता रहा था कि 60 साल की जिंदगी में, हमारी पूरी 60 साल की जिंदगी में 15 साल तो पहले ही माफ नाबालिगी के हैं। 15 साल तक आदमी बालिग नहीं होता, बालिग होने तक उसके ऊपर कोई काम नहीं, तो 15 साल तो छुट्टी के हो गए। फिर कम से कम हर एक आदमी के लिए साइंस वाले कहते हैं कि 7 या 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर जो हमारी नींद तो 7-8 घंटे से भी ज्यादा की होगी या 7-8 घंटे से कम सोते हैं, ज्यादा ही होगी, लेकिन चलो 8 घंटे सो जाए तो मालूम ये हुआ कि पूरी जिंदगी का तीसरा हिस्सा 8 घंटे हमने सोने में निकाल दिए। इसलिए 60 साल की जिंदगी में 20 साल पूरे सोने में निकल गए कि नहीं? 20 ये 15 बचपने का कितने हो गए? 35 हो गए। और ना गया 35 साल तो गए। अब इसके अलावा फिर खाना खाने के लिए कितना वक्त निकालते हो? रोजाना का खाना खाने का वक्त निकालो, पेशाब करने का वक्त निकालो, दुकान का वक्त निकालो, बातचीत का वक्त निकालो, इबादत के लिए वक्त रहा कितना? लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुछ देर के लिए मेरी इबादत कर लो, हमेशा हमेशा की तुम्हें जन्नत अता कर दूंगा। फजर की नमाज तो हमारे इमाम साहब 10-12 मिनट में पढ़ाते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं तो 2 मिनट में 2 रकात हो जाती है कि नहीं? जोहर की 4 मिनट, 4 रकात 4 मिनट समझ लो 6 मिनट हो गई। असर की 4 मिनट 10 मिनट हो गई। मगरिब की 3 मिनट
13 मिनट हो गई, ईशा की 5 मिनट समझ लो, 20 मिनट पूरे दिन में सिर्फ 20 मिनट अल्लाह की इबादत करनी। लेकिन हम इतने नाशुक्र हैं कि सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की खा रहे हैं, सारी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे दिन में से 24 घंटे में से 24 मिनट अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में हम नहीं लगाते। बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। खैर, बात चल रही थी इसके ऊपर कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जब इतनी बड़ी बड़ी उम्रें होगी तो इन्होंने तो बड़ी नेकियां की तो जन्नत की बड़ी नेमतें उन्होंने कमा ली और हमारी तो इतनी उम्र है नहीं, इसलिए हम तो उन दर्जे तक पहुंचेंगे नहीं। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की ये तड़प, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को ये जो दिल में तंगी, रंज महसूस हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब थे, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन एक सूरत नाजिल की कि रमजान में हमने एक रात तुमको ऐसी दी है कि उस एक रात में कुरान पढ़ो, उस एक रात में तस्बीह पढ़ो, उस एक रात में नफल पढ़ो, उस एक रात में अल्लाह का जिक्र करो। 83 साल तक मुसलसल जिक्र करते रहो और सवाब मिलेगा, उतना सवाब मिलेगा। रमजान की लैलतुल क़द्र है। देखो, बहुत सारे खुशनसीब है वो हजरात कि जिन्होंने अपने बालिग होने के बाद से मरते दम तक कभी उन्होंने शब कदर को ज़ाय नहीं की। हज़रत शेख खूब फरमाया करते थे, हज़रत शेख भी उन लोगों में थे कि बालिग होने के बाद कभी शब कदर उनकी ज़ाय नहीं हुई। खैर, बहरहाल खुशनसीब है, बहुत सारे लोग खुशनसीब हो सकते हैं और हम तो सबसे ज्यादा बदनसीब है कि इस वक्त इस महीने में शब कदर होती है, फिर भी हमसे वो कदर नहीं होती है, शब कदर की कदर नहीं होती। बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में एक रात है और वो रात इतनी अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका इतना कदर कीमत है कि एक रात की इबादत करो, एक रात अल्लाह का जिक्र करो, एक रात कुरान पाक लेकर बैठ जाओ, हर किस्म की इबादत करनी चाहिए। 83 साल से भी ज्यादा मुसलसल इबादत करो, उतना सवाब उस एक रात की इबादत में मिलता है। अगर किसी आदमी ने एहतिकाफ किया है तो एहतिकाफ में कुछ भी नहीं कर रहा, सो रहा है वो, तो भी इस रात में एहतिकाफ करने की वजह से 83 साल मुसलसल एहतिकाफ करे, उतना सवाब उसको मिलेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, इस रात की बहुत ही कदर करनी चाहिए, जिसको शब कदर कहते हैं। अल्लाह ने उसके सबसे अव्वल शब कदर के वो दर हकीकत में बहुत ही अहम रात है। इन अवरात में इसका बयान दूसरी फसल में आएगा। इसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ने उसके रोजे को फर्ज किया। रमजान का रोजा हर आकिल बालिग मर्द के ऊपर फर्ज है, हर आकिल बालिग औरत के ऊपर फर्ज है। इस वजह से रमजान का रोजा बहुत ही एहतिमाम के साथ रखना चाहिए और इसके कयाम यानी तरावी को सुन्नत करार दिया। इससे मालूम हुआ कि तरावी का इरशाद भी खुद हक़ तआला शानहू की तरफ से है। फिर जिन रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी तरफ मंसूब फरमाया कि मैंने सुन्नत किया, इनसे मुराद ताकीद है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताकीद बहुत फरमाते थे, इसी वजह से सब अइम्मा इसके सुन्नत होने पर मुत्तफिक है। बुरहान में लिखा है कि मुसलमानों में से रवाफिज के सिवा कोई शख्स तरावी का मुनकिर नहीं, हर एक तरावी की सुन्नत के कायल है। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
माँ सबत अब सुन्ना में यानी बाज कुतुब फिका से नकल किया गया है कि किसी शहर के लोग अगर तरावी छोड़ दें तो उसके छोड़ने पर इमाम उनसे मुकाबला करे। इस जगह खुसूसियत से इस बात का लिहाज रखने की जरूरत है, वो ये है कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में 8 दिन 10 दिन में कलाम मस्जिद सुन ले फिर छुट्टी, ये ख्याल रखने का। हज़रत शेख नवर अल्लाह मरकज़ो फरमाते हैं कि रमजान में पूरा रमजान जितने दिन है रमजान के 29 हो या 30 हो, जितने दिन है उनमें रोजाना रात को तरावीह का पढ़ना सुन्नत है। और तरावीह में कुरान पाक का सुनना ये दूसरी सुन्नत है। बाद आदमी ये समझते हैं कि रमजान में कुरान को खत्म कर लो, तरावीह में कुरान पाक को सुन लो, बस फिर छुट्टी हो गई। ये सही नहीं है। कुरान पाक को तरावीह में सुनना ये मुस्तकिल सुन्नत है, और हर रात में तरावीह पढ़ना ये भी मुस्तकिलन सुन्नत है। और रिवायत से जैसा कि मालूम होता है तरावीह की 20 रकात पढ़ना ये भी सुन्नत से दाखिल है, जैसा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन इस तरीके से पढ़ा करते थे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुबारक महीना ये रमजान का अता फरमाया है। और अभी आप हज़रात ने सुना कि लैलतुल क़द्र है, और लैलतुल क़द्र की तारीफ और तालीम आगे होती भी रहेगी इंशाअल्लाह। आज ये बताया जा रहा है कि इसका रोज़ा फर्ज है, इस वजह से हमें इस फर्ज को अदा करना चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाजिल हुआ, और कुरान पाक में रोज़े की फर्जियत नाजिल हुई, तो कितने बेहतरीन अल्फाज के साथ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम्हारे पर रोज़े फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों के ऊपर फर्ज किए गए। फिर बताया अय्याम मादूदात, बहुत ही चंद मुख्तसर दिनों के रोज़े फर्ज किए गए। बुजुर्गों और दोस्तों, इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि रमजान के रोजे रमजान ही में अदा हो। हाँ, बीमार हो, माजूर हो, परेशानी हो तो उसके मुताबिक खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत फरमाई है कि बीमार हो तो बीमारी की हालत में तुम्हारे ऊपर इस वक्त रखना जरूरी नहीं। लेकिन रमजान के रोजों में जो फजीलत है, रमजान के रोजों की जो बरकत है, वो दूसरे दिनों में कज़ा करने से कज़ा तो अदा हो जाएगी, लेकिन जो फजीलत है वो हासिल नहीं होगी। इस वजह से एहतिमाम के साथ अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में एहतिमाम के साथ रोज़ा रखाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर रोज़ा रखने के साथ रोज़े की इफ्तार करने का क्या सवाब है वो इंशाअल्लाह आइंदा कल आएगा। अब इसी किताब में आएगा कि वैसे तो रोज़ादार अल्लाह तबारक व तआला का मुती और फर्मा बरदार बंदा है। अल्लाह ने कहा कि रोज़ा रखो, मत खाना खाओ, ये नहीं खाना खाता, भूख लगी है लेकिन मेरे अल्लाह ने खाने से मना किया है, प्यास लगी है लेकिन मेरे अल्लाह ने पीने से मना किया है। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा बन गया, और ये महबूब बंदा जो दुआ करेगा अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। इस वजह से 10 मिनट पहले आप हजरात की ये तालीम खत्म की जाती है कि अब जो जब तक हदीस पाक में भी आता है कि रोजेदार इफ्तार के वक्त जो दुआ करता है अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा फरमा रहे हैं तो फिर इसमें शक करने की क्या गुंजाइश। इस वजह से इस 10 मिनट में दुआ मांगो, अपने लिए दुआ मांगो, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगो। मैंने दोपहर को ही बताया था कि हम खुद मोहताज हैं, हम बीमार हैं, परेशान हैं, घरेलू परेशानियां हैं, घरेलू उलझने हैं, और अल्लाह ताला कहता है कि उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो हम देने के लिए तैयार हैं।
जब अल्लाह तबारक व तआला मांगने को कह रहा है, देने को तैयार है, फिर भी हम न मांगे तो ये तो बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है, बल्कि बहुत बड़ा एक किब्र और तकब्बुर है। इस वजह से रोजाना इफ्तार से पहले 10 मिनट मिल जाए 10 मिनट, 5 मिनट मिल जाए 5 मिनट, 3 मिनट मिल जाए 3 मिनट, बातचीत में बिल्कुल ज़ाया न करें और दुआ में लगाएं, अपने लिए मांगे। और अगर आप हजरात के लिए अगर से फरमाया करते थे कि तुम्हें ज़रूरत न हो तो फरमाते थे मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे लिए मांगे, समझना है। इस वजह से खुसूसियत के साथ दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं में हमें भी शरीक करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं की बरकत से हमारा भी काम बना दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।